Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions that may be asked in GATE 2026. You can also say that the most important concept, just like this questions is the ask about the equivalent resistance between the terminal A and B. Okay, so this equivalent circuit can be written as, one second, I can draw this whole diagram so that this is easier to understand. Okay, so once I draw, then we have to calculate the parallel combination and the series combinations of the circuit. Okay, so this is 4 ohm, this is 3 ohm, and this is 5 ohm, and this is 6 ohm, this is 8 ohm, once again 8 ohm, and this is 4 ohm. Okay, and here is A to B. So we have to find that R equivalent in this. So how can we write like that 8 ohm 4 ohm in parallel? Because you see that 4 ohm and 4 ohm, 4 ohm here is the potential point, here is the potential point, and 8 ohm the same potential. 4 ohm and 8 ohm are the same potential point, and 3 ohm, just like the 3 ohm and 4 ohm is the same potential point. That's why we written like that. These are in parallel and these are in also in parallel. So we can write like that R equivalent equal to 6 plus 8 पैरेलल विथ 4. ओके, पैरेलल विथ, ये भी पैरेलल आ जाएगा इसके. ओके, सो 5 प्लस 3 पैरेलल विथ 4. ओके, so R equivalent further we can solve. Then we have arrived 6 plus 32 divided by 12. Okay, parallel with 5 plus 12 by 7. Okay, so once you solve this, then 26 divided by 3 parallel with 47 divided by 7. Okay, and so that when you solve this, then what is the answer of this question? 3.783 ohm is the answer of this questions. Okay, easy. So come to the next question. So in these questions ask that what is the value of Ix minus Iy. Okay, what is the value of Ix minus Iy? So let's, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, let's V1 and this node is V2. Okay, so this is the incoming current and इसको मान लो आप आउटगोइंग करंट है, इसको भी मान लो आप आउटगोइंग करंट है यहाँ से. ओके, तो इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इक्वल होते हैं. सो हम लोग लिख सकते हैं Ix इक्वल टू V1 माइनस V1 माइनस माइनस Iy. वन सेकेंड, V1 माइनस Iy डिवाइड बाई 1 प्लस V1 माइनस 5, V1 माइनस, सॉरी, Ix हम लोगों ने ले चुका है इसलिए यहाँ पे हम लोग एक ही कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस Iy डिवाइडेड बाई 1 एंड V1 माइनस Ix माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1. तो Ix क्या आ जाएगा यहाँ से? 2V1 माइनस V2 माइनस Iy minus Iy. Ix and here is 2Ix. Okay, so further we can solve. Then we can write like that Ix is equal to, and Ix is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से Ix का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस Ix is equal to 5 माइनस V1 by 1. Okay,
सो once again 5 minus v1 divided by 1 is equal to ix. ओके, सो ये हो गया. सो 2ix, सो 5 minus v1 equal to 2v1 minus v2 minus iy. Okay, iy, and so we can write like that 10 minus v1 2v1, सॉरी ये 2v1 यहाँ भी आ जाएगा, माइनस v2 माइनस iy. एंड iy को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, iy इक्वल टू देखो v2 बाई 1, v2 बाई 1, सो iy इक्वल टू v2. सो 10 माइनस 2v1 है, तो 2v1 और माइनस 2v1 माइनस 4v1 और माइनस v2, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस v2. iy इक्वल टू क्या है v2, सो ये भी प्लस v2 अब प्लस 10 इक्वल टू 0. सो हम लोग लिख सकते हैं 2v2 minus 4v1 equal to minus 10. This is the first equation. And if we applied the nodal analysis in the place of v2, so हम लोग लिख सकते हैं v2 by 1, okay, and v2 plus ix minus v1 divided by 1 and plus v2 by and plus यहाँ पे ये आ जाएगा ये -1, क्योंकि ये देखो इनकमिंग करंट है तो इनकमिंग करंट हम लोग माइनस में ले रहे हैं. ओके, और आउटगोइंग करंट प्लस में. सो ये क्या आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2v2 प्लस आई एक्स का हम लोग क्या लिखे थे, आई एक्स इजल टू 5 माइनस v1, सो 5 माइनस v1 आई एक्स इजल टू ओके माइनस v1 इक्वल टू 1. सो 2v2 प्लस 5 माइनस 2v1 इक्वल टू 1. सो 2v2 माइनस 2v1 इक्वल टू 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा -4. ओके, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2v2 माइनस 4v1 इक्वल टू 10 है, -10 और 2v2 माइनस 2v1 इक्वल टू -4 है. ओके, सो ये कैंसिल आउट इधर हो जाएगा, अब -2v1 बचेगा और यहाँ पे प्लस, तो कितना आ जाएगा -10 प्लस 4 इज -6. तो v1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 वोल्ट. ओके, तो v1 की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है. तो जब आप ये v1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी, 1 सेकेंड में पुट करके ही देख लेता हूँ, v2 इक्वल टू -10 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2. सो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12, 12 माइनस 10 इज 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 वोल्ट. ओके, सो अब हम लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आई एक्स माइनस आई वाई. सो आई एक्स को क्या माने थे, ये मान लो इक्वेशन ये 1 है. सो आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई एक्स इजकल टू 5 माइनस v1. सो v1 की वैल्यू कितनी आई है हमें, आई एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3. तो 5 माइनस 3 इज 2. ओके, आई एक्स निकल गया. और आई वाई को क्या माने थे, आई वाई इक्वल टू v2. सो आई वाई इक्वल टू v2 v2 की वैल्यू कितनी आई है 1 वोल्ट. ओके, सो आई एक्स माइनस आई वाई कितना आ जाएगा 2 minus 1 is 1 ampere is the answer of this questions. Okay, easy. Come to the next question. Okay, in this question say that what is the maximum the ratio of the voltage across the load resistance connected across the terminal AB. Okay, the source voltage when the source is delivering maximum power to the load. Okay, so सबसे फर्स्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर क्या होता है, फॉर मैक्सिमम पावर आर एल इजिकल टू आर टी एच, ये हम लोग सब जानते हैं. तो आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा. ओके, वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो यहाँ पे 6 ओम, ये 12 ओम
12 ओम और ये 3 ओम एंड ये 2 ओम। और यहाँ से हमें RTH देखना है कितना आ रहा है। ओके, सो RTH क्या आ जाएगा, 12 पैरेलल विथ 6 प्लस 3 प्लस 2। तो 12 पैरेलल विथ 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 ओम। ओके, तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम। और सिमिलरली हम VTH फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर की क्वेश्चन है, तो VTH फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आएगा, पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्लस माइनस 12 वोल्ट, this is 6 ohm, this is 12 ohm, this is 3 ohm, and this is current source 2 ampere. Okay, and 2 ohm, and this is a, this is plus and this is minus VTH. Okay, so here current is equal to क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो करंट 0 हो जाएगा। सो हम लोग VTH क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0 एम्पियर है, सो VTH यहाँ आ जाएगा और इसको हम मान लेते हैं V1। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं, अब हम पहले एक नोडल एनालिसिस करते हैं। V1 माइनस 12, V1 माइनस 12 बाई 6, V1 बाई 12 और V1 माइनस VTH डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। ओके, मैंने ऐसे किया। V1 देखो इसका कितने ब्रांचेस निकल रही है, 3। V1 डिवाइड बाई 12, V1 माइनस 12 VTH 12 डिवाइड बाई 6, V1 माइनस VTH डिवाइड बाई 3। ओके, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2V1 माइनस 24 प्लस V1 प्लस 4V1 माइनस 4VTH इक्वल टू 0। सो 7V1 minus 4VTH equal to 24 is the first equation. Okay, and in the second, when we apply the nodal analysis in the VTH, so इस नोड पे नोडल एनालिसिस क्या हो जाएगा, VTH माइनस V1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, नो सॉरी 1 सेकेंड, 2 ampere current are also incoming current, so minus, incoming current is minus and outgoing current is plus. So in this node, this 2 ampere current source is the incoming current source, so that's why we taken as minus 2. Okay, so we can write like that, VTH minus V1 equal to 6. This is the second equation, and when you solve this, then we have फाइन V1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16 वोल्ट। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देना इजी। ओके, एंड VTH इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 22 वोल्ट। ओके, तो हमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल AB टू द सोर्स वोल्टेज। ओके, व्हेन द सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर। सो रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा VTH कितना आया है, 22 volt. Okay, and this is the RTH, and this is the our RL, and RL, we all know that RL is equal to RTH, and suppose this is the BL is the ratio of the voltage across the load resistance. Okay, so हम लोग BL को लिख सकते हैं, अप्लाई द वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या आ जाएगा, 22 इंटू RTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RTH। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 22 डिवाइड बाई 2, सो 11 volt. Okay, 11 volt, and the question said about that, what is the ratio of VL divided by VS. So VL is 11 volt and VS is what is there, 12 volt. So VL is 12 volt, so 11 by 12 is the answer of these questions. Okay,